नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। ये सेशन से हम स्टैटिस्टिक्स सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को समझते पहले प्रोबेबिलिटी वर्ड को समझते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी किसी एक एक्सपेरिमेंट की, किसी एक इवेंट के अकरेंस की जब हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए पहले हमें बेसिक टर्म समझनी होगी। इवेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये सब चीजों को समझना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप पहले टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के आउटकम को डिजाइन करने के बारे में बेसिक है। तो पहले टर्म से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी की शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग ये है, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला शब्द समझना है रैंडम एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। तो यहां पे पहले शब्द को समझते हैं। द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड मींस जो रिपीटेशन है एक्सपेरिमेंट का वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस रिपीटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, मींस ईच रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ इंडिपेंडेंट. So the experiment which can be independently repeated under identical conditions means the conditions where the experiment is performed is similar type of conditions, like tossing a balance coin. So same type of environment में tossing a balance die, selecting a card out of 52 well shuffled cards from a pack of 52 cards. All these examples means of identical conditions, similar type of conditions. इससे ये होगा कि जो चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ सर्टेन आउटकम्स है वो सेम रहेंगे सबके लिए। चांस ऑफ अकरेंस विल रिमेन सेम। सो ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इंपॉर्टेंट. इट इज टू बी स्पेसिफाइड क्लियरली. सो द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस एंड ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स आर नोन. ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स यानी जितने आउटकम्स उस एक्सपेरिमेंट में से मिल सकते हैं, all that possible outcomes are known, but which of the outcomes will appear cannot be predicted before conducting that experiment. This type of experiment is called random experiment. यानी कितने आउटकम्स है वो हमें पहले से पता है, पर उसमें से कौन से आउटकम्स आएंगे रिजल्ट के तौर पे उस एक्सपेरिमेंट के, वो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. That type of experiment is called random experiment. So the experiment which can be independently repeated under identical conditions and all its possible outcomes are known, but which of the outcomes will appear cannot be predicted with certainty before conducting the experiment is called a random experiment. तो ये हमें समझना है. एक्सपेरिमेंट के जो भी पॉसिबल आउटकम्स है, all possible outcomes, they are called sample space. The set of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space. The set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space, and that is symbolically known as capital U or capital S. But for sake of presentation throughout the chapter, we will use capital U to identify, to present sample space. So first, the experiment which can be independently repeated under identical condition and all its possible outcomes are known, but which of the outcomes will appear cannot be predicted with certainty before conducting the experiment is called a random experiment, and the set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space of that random experiment. That sample space is of two types now, where all the outcomes are countable in nature. If all the outcomes are countable in nature, it is called finite sample space, and if all the outcomes are uncountable in nature, it is called infinite sample space. Now this is first part of the discussion, that is random experiment. Outcomes are known as sample space and symbolically can be presented as capital U or capital S. Now second part is set of the sample space. Subset of the sample space of random experiment is called an event. Event is a subset of sample space. So subset of the sample space of random experiment is called an event, and that event can be presented symbolically as A, B, C, D. All the letters can be used to present any event.
A1, A2, A3, A4 ऐसे भी इवेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ABCDEFG इस तरह से भी हम इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। सिर्फ कैपिटल U यूज नहीं करना है, बिकॉज U ऑलवेज रिप्रेजेंट सैंपल स्पेस। नाउ एंड फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड M। फेवरेबल आउटकम्स के जो नंबर है इट इज प्रेजेंटेड एज स्मॉल m। तो हमें चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को समझना है यहां पे, U, N, A and M। A, B, C, D कोई भी इवेंट हो सकती है, लेकिन ये चार कंपोनेंट को हमें समझना है। ये एक एग्जांपल है कि पूरे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में हम क्या करने वाले, इसका यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट एग्जांपल है। एक एग्जांपल क्रिएट ये किया गया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। देयर इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ बैलेंस डाई सिक्स फेस्ड यानी जिसके 6 साइड है। ऐसी बैलेंस डाई को अगर हम टॉस करें तो उसकी 6 साइड पे नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। सो हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, सैंपल स्पेस में आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हुआ U, जो हुआ ये हुआ सैंपल स्पेस। U है सैंपल स्पेस जिसमें सारे आउटकम हम शो करेंगे। देन N इज नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6। इसमें 6 आउटकम है इसलिए नंबर ऑफ आउटकम 6। दिस इज सैंपल स्पेस एंड सैंपल साइज। सैंपल स्पेस U एंड सैंपल साइज N। नेक्स्ट इज इवेंट। तो इवेंट को हमने A नाम दिया है, इवेंट A। इवेंट के कोई भी नाम हो सकते हैं, सैंपल स्पेस U ही रहेगा और इस U के अंदर n नंबर ऑफ इवेंट्स आप फ्रेम कर सकते हैं और हर एक अलग अलग इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे एक इवेंट लिया है, इवेंट A, नंबर मोर देन और इक्वल टू 5 अपीयर्स। तो इवेंट्स तो बहुत सारी हो सकती है, जैसे नंबर 1 अपीयर, नंबर 2 अपीयर, 3 अपीयर, 4 अपीयर, 5 अपीयर, 6 अपीयर, नंबर मोर देन 3 अपीयर, लेस देन 2 अपीयर, लेस देन और इक्वल टू 3 अपीयर, ऑड नंबर अपीयर्स, इवन नंबर अपीयर। ऐसी कोई भी इवेंट हो सकती है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन दैट नंबर मोर देन और इक्वल टू 5 अपीयर्स, मोर देन और इक्वल टू 5। अब 5 या 5 से बड़े 2 ही नंबर है, यहाँ पे 2 ही डिजिट्स है, 5 एंड 6। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम ऑफ दैट इवेंट इज 5 एंड 6। तो यहाँ पे इवेंट को ऐसे ही समझना है हमें, अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। तो सबसेट क्या हुआ, हमारे पास जो सारे आउटकम थे उसमें से 2 ही आउटकम सिलेक्ट हुए, 2 ही फेवरेबल आउटकम है इवेंट के लिए, 5 एंड 6। तो उसके नंबर हुए 2, आउटकम्स हुए 2। और लास्ट स्टेज है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A is present mathematically, it is m upon n। m upon n means total outcomes n and favorable outcomes for that event is m, means favorable outcomes of the event is divided by total number of outcomes of the experiment of the sample space, it is called probability। यानी 2/6 1/3 is the answer of this first example। तो यहां पे फिर से एक बार 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे, सैंपल स्पेस U, सैंपल साइज N, इवेंट स्पेस ABCD, जो भी इवेंट आप लिखो उसकी स्पेस यानी उसके आउटकम, एंड इवेंट साइज तो M। इसके लिए 4 स्टेप U, N, A, M, उसके बाद प्रोबेबिलिटी M अपॉन N एंड आंसर इज 2/6 1/3। नाउ ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन सैंपल स्पेस एंड इवेंट स्पेस। अब जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, तो तब हम सारे आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी सैंपल स्पेस, कई बार हजारों में लाखों में आउटकम्स हो सकते हैं और ये इवेंट के आउटकम भी हजारों में हो सकते हैं। तो हर बार हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि सैंपल स्पेस और इवेंट स्पेस को मेंशन किया जा सके, यानी U और A में कितने आउटकम्स है उसको शो नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी साइज यानी N और M को डिफाइन कर सकते। और प्रोबेबिलिटी के लिए हमें वही 2 कंपोनेंट की M और N की जरूरत रहेगी थ्रू आउट द चैप्टर। बट फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें एग्जांपल्स दिए गए सैंपल स्पेस और इवेंट स्पेस को डिफाइन करने के लिए, ताकि हमें उसकी प्रैक्टिस हो जाए, एक बार विजन क्लियर हो जाए कि किस तरह से सैंपल स्पेस और इवेंट स्पेस डिजाइन होती है। तो इसके एग्जांपल है, यहां से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑल पॉसिबल आउट। पहले तो ये बात याद रखनी है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये एक स्टेटमेंट क्लियर रखना है, हर एक क्वेश्चन में प्रेजेंट करना है जहां पे भी हमें सैंपल स्पेस शो करना है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ फर्स्ट केस इज टॉसिंग अ बैलेंस कॉइन 3 टाइम्स। टॉसिंग अ बैलेंस कॉइन 3 टाइम्स। तो जब भी कोई कॉइन को हम टॉस करते हैं उसके 2 आउटकम है H एंड T, H फॉर हेड्स एंड T फॉर टेल्स। तो 2 आउटकम है, एक कॉइन को टॉस करे तो 2 आउटकम है, 2 कॉइन 3 कॉइन ऐसे नंबर ऑफ कॉइन, मल्टीपल कॉइन्स को टॉस किया जाए
तो उसके लिए एक टेबल हमने प्रिपेयर किया है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकाले जाए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज आउटकम रेज टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी पर ऑब्जेक्ट एक कॉइन के जितने आउटकम है रेज टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कितने कॉइन हम टॉस कर रहे हैं। तो ऐसी दो ही बातें ज्यादातर पूछी जाती है कॉइन और डाई के बारे में। तो पहले कॉइन के एग्जांपल को समझते हैं। कॉइन के दो आउटकम है एच एंड टी। अगर एक कॉइन को टॉस करे तो उसके आउटकम आएंगे 2:1 यानी 2। दो कॉइन को टॉस करे तो 2:2 यानी 4। तीन कॉइन को टॉस करे तो 2:3 यानी 8 आउटकम्स। चार कॉइन को टॉस करे तो 2:4 यानी 16 आउटकम्स। और पांच कॉइन को टॉस करे तो 2:5 यानी 32 आउटकम्स। तो हर बार फॉर्मूला यही रहेगी, आउटकम रेज टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आउटकम्स पर ऑब्जेक्ट फिक्स होते हैं रेज टू जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या जितने टाइम उसको रिपीट किया जाए एक्सपेरिमेंट को। जरूरी नहीं है कि 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंस कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो बोथ द एक्सपेरिमेंट है सेम आउटकम, टॉसिंग 3 बैलेंस कॉइन टुगेदर और टॉसिंग अ बैलेंस कॉइन 3 टाइम्स। तो दोनों में आउटकम तो 8 ही आने वाले। तो इस तरह से यहां पे फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, आउटकम्स रेज टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर एक डाई को हम टॉस करें तो डाई में टोटल 6 आउटकम है, 1 2 3 4 5 6। अगर एक डाई को टॉस करे तो 6:1 6 आउटकम। दो डाई को टॉस करे तो 6:2 यानी 36 आउटकम। तीन डाई को, ज्यादातर दो के ही केसेस आते हैं, पर अगर तीन डाई को टॉस करे तो 6:3 यानी 216 आउटकम। कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे यहां पे हमने लिखा है 1 कॉइन एंड 1 डाई टुगेदर, बोथ 1 and 1। तो 1 into 1 यहां पे दोनों को टॉस किया जाए तो एक कॉइन के आउटकम है 2 और एक डाई के आउटकम है 6, तो टोटल आउटकम होंगे 12। तो कभी भी कॉम्बिनेशन पूछा जाए तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 1 कॉइन और 2 डाई का हो सकता है तो 2 into 36 यानी 72 आउटकम्स। इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन नेसेसरी नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहां पे हमें सैंपल स्पेस में प्रेजेंट करना है और ये कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स के लिए आउटकम है 8। और बेसिकली एक कॉइन में आउटकम आते हैं एच एंड टी 2। तो यहां पे 3 कॉइन के लिए रिजल्ट्स आएंगे एच एच एच, यानी तीनों पे हेड्स आए। फिर एक टी लाएंगे, सिर्फ एक टी, फिर टी की पोजीशन चेंज करेंगे, एच एच टी एच टी एच एच। अब दूसरा टी लाएंगे यानी टी टी एच टी, अब एच की यहां पे इंटरनल पोजीशन चेंज होगी, यानी टी टी एच के बाद टी एच टी टी एंड देन लास्ट में ऑल 3 टेल्स यानी टी टी टी। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहां पे आएंगे 8। तो हमें यहां पूछा गया था सैंपल स्पेस प्रेजेंट करना, यू हुआ सैंपल स्पेस, एन हुआ सैंपल साइज। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज, अब हर एक में पहले स्टेटमेंट वही लिखना है हमें, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ बैलेंस डाई एंड अ कॉइन टुगेदर। तो आ गया यहां पे केस, एक डाई और एक कॉइन को साथ में टॉस करना है। तो 1 कॉइन has 2 outcome H and T and 1 die has 6 outcome 1 2 3 4 5 6। यानी एक कॉइन और एक डाई को दोनों को साथ में टॉस किया जाए तो उसके अंदर 2 into 6 12 आउटकम्स निकलेंगे। 2 into 6 12 आउटकम्स। तो उसके आउटकम्स होंगे, जब H आएगा तो H के साथ पूरी सीरीज आएगी, यानी हेड्स के साथ डाई पे 1 2 3 4 5 6, यानी H1 H2 H3 H4 H5 H6। वैसे T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो दिस 6 + 6 टोटल 12 आउटकम्स। तो इस तरह से ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये बेसिक वर्ड्स हर एक में आपको लिख देने हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये एक वर्ड लिखा हो कैपिटल में, इसका यही मतलब आपको थ्रू आउट द चैप्टर आइडेंटिफाई करना है। all possible outcomes of random experiment of tossing a balanced die and a coin together, and answer is total 12 outcomes, sample space and sample size. Next is all possible outcomes, again all possible outcomes of random experiment, all possible outcomes of random experiment of selecting 2% from 5% A B C D E। 5 लोग है, 5 में से 2 को सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन आया यानी कॉम्बिनेशन आया। कॉम्बिनेशन हमारा प्रीवियस स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स का बेस है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसमें से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ये पूरे चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी में। तो कॉम्बिनेशंस के जरा रूल समझ लेते हैं। यहाँ पे 2% को सिलेक्ट करने की बात हो रही है। 2% आर टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5%।
अब सिलेक्शन अगर सिंगल का हो, एक ही ऑब्जेक्ट का हो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट हो यानी मोर देन वन ऑब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन हमेशा बनता है विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट या सिंगल शॉट विड्रॉल। तीन पॉसिबिलिटी बनती है जब मोर देन वन ऑब्जेक्ट इज टू बी टेकन, इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ दैट टोटल यूनिट्स। तो वन बाय वन है, विथ रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, सिंगल शॉट विड्रॉल है, वो हमें चेक करना पड़े, उसका एक कॉन्सेप्चुअल बेस बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमने पहले ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तैयार की है। अगर ये इंफॉर्मेशन क्लियर है तो कोई भी केस आएगा सिलेक्शन का वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा केस ये लिया है कि देयर आर 6 चीट्स, देयर आर 6 चीट्स, चीट्स मींस पीस ऑफ पेपर containing distinctive numbers from 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, all 6 distinctive number have been placed, have been written on those cheats, 6 cheats. Those cheats are well shuffled in a box in a vessel, and now 2 cheats are to be selected. 2 cheats are to be selected out of those 6 cheats, and question is it can be 1 by 1 with replacement, can be 1 by 1 without replacement, and can be in a single shot withdrawal. तो ये तीनों ऑप्शन को समझते हैं। अगर 6 में से 2 चीट उठानी है और ये 1 बाय 1 है विथ रिप्लेसमेंट, यानी विथ रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ a unit which is selected earlier is replaced with the population while making the sequential withdrawal. This is called with replacement. And without replacement means a unit which is selected in a first withdrawal is set aside while making the sequential withdrawal. तो पहला यूनिट जो सिलेक्ट हुआ है अगर उसको हम वापस रखते हैं तो वो विथ रिप्लेसमेंट है। तो यहां पे पहले 6 में से एक चीट सिलेक्ट होगा, फिर उस चीट को हम वापस रखेंगे, इसलिए बॉक्स में वापस से 6 चीट हो जाएगी और उस 6 में से वापस से एक चीट विड्रॉ की जाएगी, यानी 61 इंटू 61, 61 इंटू 61, तो 6 इंटू 6 यानी टोटल 36 आउटकम, यानी 11 12 13 14 15 16, 21 22 23 24 25 26, 31 32 33 34 35 36, 41 42 43 44 45 46, 51 52 53 54 55 56, 61 62 63 64 65 66. So total 36 outcomes. अब ये 36 आउटकम्स है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होती है कि जब भी विड्रॉल हो 1 बाय 1 हो और विथ रिप्लेसमेंट हो, इससे ज्यादा नंबर ऑफ आउटकम्स कभी भी सिलेक्शन में पॉसिबल नहीं है। हाँ, उससे कम हो सकते हैं, तो कम होने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अगर 1 बाय 1 ही विड्रॉ करे लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट हो। विदाउट रिप्लेसमेंट मींस अ यूनिट व्हिच इज सिलेक्टेड इज सेट असाइड, इट इज नॉट रिप्लेस्ड विद द पॉपुलेशन। सो उसको वापस नहीं रखा गया है, जो चीट पहली बार में हाथ में आई है उसको वापस नहीं रखा गया है और दूसरा विड्रॉ किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले विड्रॉल में जो चीट हाथ में आई थी वो चीट दोबारा नहीं आएगी, उसकी दोबारा आने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि उस चीट को हमने साइड पे रख दिया है। तो यहां पे 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट में पहले बार 6 में से 1 चीट टू बी सिलेक्टेड 61, एंड सेकंड शॉट में 5 में से यानी 6 इंटू 5 टोटल 30 आउटकम्स होंगे। जैसे पहले केस में 36 आउटकम थे, वैसे दूसरे केस में यहाँ पे 30 आउटकम्स आएंगे। तो ये 30 आउटकम्स के लिए 11 2 12 13 से 16 और 61 से 66 तक के सारे आउटकम प्रेजेंट किए गए। उसमें जो रिपीटेटिव नंबर्स है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 केस एलिमिनेट हो जाएंगे। टोटल 36 आउटकम थे, उसमें से ये 6 हटा दिए जाए तो बाकी के 30 आउटकम्स होंगे, यानी उसमें मिरर 1 2 और 2 1 होगा। 1 2 और 2 1 ये दो अलग अलग आउटकम होते हैं सीक्वेंशियल विड्रॉल में, पहले 1 बाद में 2 और पहले 2 बाद में 1, ये दो ऑप्शन अलग हुए क्योंकि 1 बाय 1 विड्रॉल है, इसलिए यहां 1 2 2 1 1 3 3 1 ये मिरर इमेजेस आएगी, पर सेम नंबर रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि चीट जो पहली बार आई है उसको हमने साइड पे रख दिया, इसलिए वो चीट दोबारा आने के कोई चांसेस ही नहीं है। इसलिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये 6 आउटकम अगर ये 36 में से हम हटा दे तो टोटल 30 आउटकम्स आएंगे। अगर यही विड्रॉल, दो चीट का विड्रॉल सिंगल शॉट विड्रॉल होता यानी सिंगल मोड विड्रॉल, एक साथ दोनों चीट विड्रॉ करते हैं, तो n इज इक्वल टू 6c2। n को फाइंड करने का तरीका होगा 6c2 नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए, यानी 6 इंटू 5/2, सो टोटल 15 आउटकम्स आएंगे। तो पहली बात यहां पे दोनों चीट एक साथ उठा रहे हैं, इसलिए कोई भी नंबर रिपीट होने के तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि एक नंबर वाली एक ही चीट है, इसलिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 के तो कोई चांस नहीं है। अगर 1 बाय 1 में ही चांस नहीं है तो सिंगल विड्रॉल में तो कोई चांस नहीं है। अब
सिंगल विड्रॉल है, इसलिए जो 1-2 आएगा तो 2-1 नहीं आएगा, क्योंकि 1-2 और 2-1 का अब यहाँ एक ही मीनिंग है। सिंगल विड्रॉल में दोनों चीट एक साथ बाहर आ रही है। 1/1 में दो अलग मीनिंग होता था, वन पहले फर्स्ट फिर सेकंड नंबर, फिर यहाँ पहले सेकंड और बाद में फर्स्ट नंबर, 1 बाद में 2 आया, यहाँ पहले 2 और बाद में 1 आया, इसलिए 1-2 और 2-1 हैज डिफरेंट मीनिंग 1/1 सीक्वेंशियल विड्रॉल में। पर सिंगल शॉट में 1-2 और 2-1 का सेम मीनिंग होता है, इसलिए 1-2 आएगा तो 2-1 नहीं, 1-3 आएगा तो 3-1 नहीं, 1-4 आया तो 4-1 नहीं, 1-5 आया तो 5-1 नहीं, 1-6 आया तो 6-1 नहीं, ये पूरी लाइन कैंसिल हुई। फिर 2-3 आया तो 3-2 कैंसिल, 2-4 आया तो 4-2 कैंसिल, 2-5 आया तो 5-2 कैंसिल, 2-6 आया तो 6-2 कैंसिल, फिर 3-4 आया तो 4-3 कैंसिल, 3-5 आया तो 5-3 कैंसिल, 3-6 के सामने 6-3 कैंसिल, 4-5 आया तो 5-4 कैंसिल, 4-6 के लिए 6-4 कैंसिल और 5-6 के लिए 6-5 कैंसिल। तो ये सारी रिपीट, यहाँ पे जो मिरर इमेजेस थी वो सारी की सारी कैंसिल हो गई, इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बचेंगे 15। क्वेश्चन को माइन्यूटली ऑब्जर्व करके हमें समझना होगा कि क्वेश्चन में 1/1 विड्रॉल है, 1/1 है तो विथ रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, या तो सिंगल विड्रॉल है, तो वो चेक करना पड़े। ये इसके लिए बेसिक नॉलेज याद रखना है हमें। अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो 6C1 इंटू 6C1, जितने ऑब्जेक्ट है उतने के उतने ही रहेंगे, और अगर 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक ऑब्जेक्ट कम हो जाएगा, यानी 6C1 इंटू 5C1, और अगर सिंगल विड्रॉल है तो डायरेक्ट 6C2। तो इस तरह से ये जो केस है अपना कि 5% है ABCD, उसमें से कोई भी दो सिलेक्ट करने। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग 2% फ्रॉम 5%, ABCDE 5 में से दो सिलेक्ट करने हैं, तो n इज इक्वल टू 5C2, यानी 5 इंटू 4/2, टोटल 10 आउटकम्स हुए। अब 10 आउटकम्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो इसमें A से शुरुआत करेंगे और E तक पहुंचने के बाद ही A को लेफ्ट करेंगे, तो AB AC AD AE यहां तक पहुंच गए, उसके बाद A को छोड़ देंगे, फिर BC BD BE BC BD BE, और उसके बाद B जाएगा तो CD CE CD CE, और उसके बाद C जाएगा तो बचेगा D। इस तरह से ये सिंगल शॉट विड्रॉल में आउटकम्स डिफाइन करने। तो आउटकम्स आएंगे 5 में से 2 सिलेक्ट करने, तो अब से क्लैरिटी रहेगी हमें कि 5C2 कब करना है, 5C1 इंटू 5C1 कब करना है, 5C1 इंटू 4C1 कब करना है, 5C1 इंटू 5C1 विथ रिप्लेसमेंट, 5C1 इंटू 4C1 विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड 5C2 सिंगल विड्रॉल। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यहां पे सिंगल विड्रॉल ही था, बिकॉज बोला गया था 2%, ऐसा नहीं बोला था कि 1/1 2%, डायरेक्ट बोला गया 2%, तो सिंगल विड्रॉल 5C2, आंसर इज 10 एंड आउटकम्स विल बी डिफाइंड इन दिस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर दिस, सेकंड क्वेश्चन इज ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट फ्रॉम 100 मार्क्स एग्जाम। 100 मार्क की एग्जाम में स्टूडेंट के कितने स्कोर हो सकते हैं, तो यहां पे सैंपल पॉइंट्स है 101। अब यहां पे सीधा सीधे क्वेश्चन है सैंपल पॉइंट्स डिफाइन करने के। अगेन बैक टू नॉर्मल सिचुएशन कि हम हर एक क्वेश्चन में सैंपल साइज, सैंपल स्पेस और सैंपल साइज डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे 100 मार्क की एग्जाम में कोई स्टूडेंट कितने स्कोर कर सकता है, तो टोटल उसकी 101 पॉसिबिलिटीज है, 101 सैंपल पॉइंट्स आर देयर। 0 मार्क्स भी आ सकता है और मैक्सिमम 100 मार्क्स भी आ सकते हैं, इस तरह 101 सैंपल पॉइंट्स आएंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर आर 4 पर्सन ABCD, हमें बोला गया कि 4 लोगों में से हमें एक मिनिस्टर और एक डेप्यूटी मिनिस्टर सिलेक्ट करना है, एक मिनिस्टर और एक डेप्यूटी मिनिस्टर। अब चीज को, ये बात को ध्यान से समझते कि यहाँ पे वापस सिलेक्शन की बात आई तो 1/1 विथ रिप्लेसमेंट समझे, विदाउट रिप्लेसमेंट समझे कि सिंगल विड्रॉल समझे। तो ये केस को जरा समझते हैं। यहाँ पे पहली बात कि 1/1 है यहाँ पे, लेकिन विथ रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि सेम पर्सन का नाम अगर वापस निकलेगा तो सेम पर्सन मिनिस्टर भी बनेगा, डेप्यूटी मिनिस्टर भी बनेगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी विथ रिप्लेसमेंट की बात नहीं है। सिंगल विड्रॉल भी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो सिलेक्टिंग 1 मिनिस्टर एंड 1 डेप्यूटी मिनिस्टर ऐसा बोला है, यानी सिलेक्शन 1/1 हो रहा है, वो बात पक्की है। सिलेक्शन 1/1 हो रहा है, वो बात तय है, यानी सिंगल विड्रॉल का केस नहीं है, बट विथ रिप्लेसमेंट का भी केस नहीं है, इसलिए विदाउट रिप्लेसमेंट 1/1 विड्रॉल हुआ। विदाउट रिप्लेसमेंट 1/1 विड्रॉल हुआ, यानी 2 मिनिस्टर को सिलेक्ट करना है, उसके लिए 4 चीट पे नाम ABCD लिख दिया गया है। Then all possible outcome of random experiment of selecting 1 minister
एंड 1 डेप्यूटी मिनिस्टर। इस तरह से 1 बाय 1 इनडायरेक्टली सेंटेंस में क्वेश्चन में ही बता दिया गया। यहां पे कैसा बोला गया था, 2%, सिलेक्टिंग 2%, तो यहां 1 बाय 1 नहीं हाईलाइट हो रहा था, यहां पे पता चल जाता है कि सिलेक्टिंग 1 मिनिस्टर एंड 1 डेप्यूटी मिनिस्टर। तो इस तरह से यहां पे आउटकम्स आएंगे 4C1 इंटू 3C1, पहले 4 में से एक पर्सन सिलेक्ट होगा, उसके बाद 3 में से एक सिलेक्ट होगा, तो टोटल 12 आउटकम्स। तो सेम जैसे यहां पे हमने डिफाइन किए थे आउटकम्स, उस तरह से यहां पे आउटकम्स आएंगे, लेकिन सिचुएशन ये होगी कि पहले हम ए से शुरू करेंगे, डी तक जाएंगे, ए बी ए सी ए डी, फिर ए जाएगा, बी सी बी डी, फिर बी जाएगा, फिर सी डी। तो ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी एंड सी डी। पर ये जो 6 आउटकम है उसकी मिरर इमेजेस भी आएगी, क्योंकि सिलेक्शन 1 बाय 1 है। इसका मतलब अगर ए मिनिस्टर है तो बी डेप्यूटी मिनिस्टर है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि बी मिनिस्टर हो और ए डेप्यूटी मिनिस्टर हो, यानी ए बी और बी ए ये दो सेपरेट ऑप्शंस होंगे यहाँ पे। इसलिए ये जो 6 आउटकम हमने ऊपर निकाले उनकी सारी मिरर इमेजेस, ए बी के लिए बी ए सी के लिए सी ए डी के लिए डी ए, बी सी के लिए सी बी, बी डी के सामने डी बी और सी डी के सामने डी सी। इस तरह से टोटल 12 आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ बैलेंस कॉइन हैज 2 साइड्स। पहले तो हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि टॉसिंग अ बैलेंस कॉइन टिल द फर्स्ट हेड्स इज ऑब्टेन। पहला हेड्स हमें मिल जाए तब तक हमें कॉइन को टॉस करना है, देन द एक्सपेरिमेंट इज टर्मिनेटेड, एक्सपेरिमेंट इज क्लोज्ड। तो तब तक हमें कॉइन को टॉस करना है जब तक हमें एच नहीं मिल जाता। तो पहले तो कॉइन में 2 साइड है, एच एंड टी। सो बैलेंस कॉइन हैज 2 साइड्स, एच एंड टी। All possible outcomes of random experiment of tossing a balanced coin till the first head is obtained. Tossing a balanced coin till the first head is obtained. पहला H मिले तब तक कॉइन को टॉस करना है। तो ये एक्सपेरिमेंट में H पहली बार में मिल सकता है, यानी आउटकम होगा H। नहीं आया तो TH, नहीं आया तो TTH, फिर TTTH, फिर TTTTH, फिर TTTTTH। सो यहां पे प्रीसीजन के साथ हम नहीं बता सकते कि H कब आएगा। वो पहले ट्रायल में भी आ सकता है और n नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद भी आ सकता है। ये एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। और जब भी ऐसा एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस हो जो काउंटेबल नेचर का ना हो, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे दिस इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सैंपल स्पेस which is given in the book। टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में एक ही एग्जांपल है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस का। इनफाइनाइट सैंपल स्पेस मींस अनकाउंटेबल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर वो काउंटेबल हुए तो n काउंट हो सके तो n लिखेंगे, नहीं तो इनफाइनाइट। जैसे स्टार्स इन अ गैलेक्सी, नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन एन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, सैंड पार्टिकल्स ऑन दिस प्लेनेट, all these water molecules on this planet, all these examples are of infinite sample space, uncountable in nature। तो हम सिर्फ ये पूरे चैप्टर में जो भी बात करेंगे वो सब काउंटेबल यानी फाइनाइट सैंपल स्पेस के बेस पे ही होगा। पर ये एक एग्जांपल था इनफाइनाइट सैंपल स्पेस का, उसको प्रेजेंट ऐसे करना है। लास्ट में कभी भी आउटकम शो नहीं करेंगे, टी 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 एच के बाद डॉट 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 करके छोड़ देना है, यानी आगे n नंबर ऑफ आउटकम्स आते रहेंगे। 5th क्वेश्चन, हमें पूछा गया है कि 3 नंबर्स आर टू बी सिलेक्टेड। 3 नंबर्स, जैसे यहां पे 2 पर्सन्स, वैसे 3 नंबर्स आउट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 एंड ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग 3 नंबर्स आउट ऑफ 5। 3 नंबर्स आउट ऑफ 5, डायरेक्ट 3 बोल दिया है तो ये सिंगल शॉट विड्रॉल हुआ, यानी 5C3। तो 5C3 यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 बाई 3 इंटू 2। फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। और इसको प्रेजेंट करें यहाँ पे 5C3, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3। फिर हमने कंक्लूड किया है कि जब भी कैलकुलेशन करना है इस तरह से, जैसे 25C3 करना हो तो 25 इंटू 24 इंटू 23 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। सिंपल इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, यानी जहां से शुरुआत करनी है वहां से जितनी पोजीशन तक आगे जाना है मल्टीप्लीकेशन अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। सेम अगर 15C4 बोले तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2। इस तरह से कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन किया जाता है। जस्ट टू इलस्ट्रेट एन एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे। वैसे यहाँ पे हमें 5C3 का काम करना है,
5C3 is 5 into 4 into 3 upon 3 into 2 and total number of outcome is 10. अब इसके लिए 1 2 3 4 5 में से पहले 1 2 से शुरू करेंगे, 1 2 को फिक्स करेंगे तो 1 2 3 1 2 4 1 2 5, ये 3 आउटकम हुए. अब 2 निकल जाएगा 1 3 4 1 3 5 1 3 4 1 3 5. इसके बाद 3 निकल जाएगा 1 4 1 4 5, 1 निकल जाएगा 1 4 5 से सीरीज 1 की पूरी हो गई. अब 1 निकल जाएगा तो 2 3 4 2 3 5, फिर 3 निकलने पे 2 4 5 एंड एट लास्ट 2 निकलने पे 3 4 5. तो इस तरह से टोटल 10 आउटकम्स टू बी प्रेजेंटेड फॉर सिलेक्टिंग 3 नंबर्स आउट ऑफ 5 नंबर्स. सॉरी, आउट ऑफ 3 नंबर्स आउट ऑफ 5 नंबर्स. तो टोटल आउटकम्स होंगे 10 एंड इट कैन बी प्रेजेंटेड इन दिस वे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ऑलरेडी सैंपल स्पेस दिया गया, यानी क्वेश्चन ही यहां से शुरू हो रहा है. हमें डिफाइन नहीं करना है एक्सपेरिमेंट को, सीधा सैंपल स्पेस सैंपल साइज दिया गया है. अब हमें अगर सैंपल स्पेस दिया है तो सैंपल स्पेस नहीं पूछेंगे, यानी हमें इवेंट स्पेस नेक्स्ट स्टेप पे ले जाया जा रहा है. इवेंट स्पेस डिफाइन करने की बात है. और इवेंट तो हमने यहीं से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया है. एक्सरसाइज में हमें सिर्फ इवेंट की स्पेस पूछी गई है, बट फिर भी 2 स्टेप आगे जाके हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कंप्यूटेशन कर रहे हैं. समझते हैं इस क्वेश्चन को. देयर आर 20 नंबर्स, 1 to 20 नंबर्स है यहाँ पे सैंपल स्पेस में. टोटल सैंपल पॉइंट्स हुए 20. फर्स्ट इवेंट है सिलेक्टेड नंबर इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर सिलेक्ट हो. तो ये इवेंट हुआ. इस तरह से इवेंट का आइडेंटिफिकेशन जैसे हमने यहाँ पे किया था, इवेंट ए नंबर मोर देन और इक्वल टू 5, वैसे यहाँ पे इवेंट ए है सिलेक्टेड नंबर इज एन ऑड नंबर. तो इवेंट ए के आउटकम्स आएंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19. Total 10 outcomes. Symbolically m is equal to 10 and its answer for probability of event A is m upon n. 10 by 20, answer is 1 by 2. Event B में हमें बोला गया है कि selected number is divisible by 3. So either it is called divisible by 3 or multiple of 3. एक ही बात हुई. 3 का मल्टीपल में नंबर्स आते हैं. B के लिए आउटकम्स आएंगे 3 6 9 12 15 18. m is equal to number of outcomes 1 2 3 4 5 6, total 6 outcome. And probability of this event PB, probability of event B and P of B is m upon n 6 by 20. Here P of A is m upon n, that is 1 by 2. Third event, event C is determined as selected number is divisible by 2 or 3. Selected number is divisible by 2 or 3, यानी 2 और 3 से डिवाइड हो सके. ऐसे 1 to 20 में से नंबर्स है 2 3 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 and 20. Total outcomes are 13, so m equals to 13 and probability of event C is m upon n 13 by 20. 13 by 20. तो odd number में 10 आउटकम थे इवेंट के, m is equal to 10 and probability m upon n is 10 by 20. Second event B में favorable outcome for event B where 6, m is equal to 6 and probability of event B is m by n 6 by 20. And third event में the selected number is divisible by 2 or 3 में उसके favorable जो outcomes थे m is equal to 13 for event C and its probability is m upon n is 13 by 20. Next question number 7 में we need to determine gender of children of families having 2 children. Gender of children from families having 2 children. तो उसके लिए हमें पूछा गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबॉलिकली हम प्रेजेंट कर लेते हैं B for boy and G for girl. B stands for boy and G for girl. So all possible outcomes of random experiment of determining gender of children from families having 2 children. Sentence formation proper रखना है यहाँ पे. B for boy and G for girl इस तरह से पहले आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे हेड्स और टेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं वैसे हर बार आंसर लिखते वक्त ऐसे आइडेंटिफाई करिए. उसके बाद all possible outcomes of random experiment of determining gender of children from families having 2 children. तो उसके लिए सैंपल स्पेस जो आएगा U, there are 4 options. Now अगर कोई फैमिली में 2 बच्चे हैं तो 4 ऑप्शन हो सकते हैं. पहला और दूसरा वो दोनों बॉयज है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बॉयज है, यानी BB is the first option. Then BG, first is boy and second is girl. Then GB, first is girl and second is boy and both the girls, यानी G and G. So there are 4 options. आप यहाँ पे BB की मीन्स बॉय और गर्ल की जगह मेल और फीमेल, यानी मेल मेल, मेल फीमेल, फीमेल मेल एंड फीमेल फीमेल ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने बॉय और गर्ल का एग्जांपल लिया है, मेल फीमेल का भी ले सकते हैं.
तो U, BB, BG, GB and GG टोटल 4 आउटकम्स, n is equal to 4। अब हमें इवेंट A1 में पूछा गया है कि वन चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड, वन चाइल्ड इज अ गर्ल और वन चाइल्ड इज अ फीमेल। तो एक बच्चा फीमेल है ऐसा बोला गया है, इसका मतलब दूसरा मेल ही है। एक फीमेल और दूसरा मेल, ये कॉम्बिनेशन में दो ही आउटकम है, BG एंड GB, BG एंड GB। तो दो आउटकम हुए इस इवेंट A1 के फेवरेबल आउटकम, तो m is equal to 2 and if we are asked to compute probability of event A1, P of A1 is equal to m upon n, answer is 2/4, answer is 2/4। 2 is favorable outcome of the event M and n is favorable outcome, means all possible outcomes of a random experiment, so 2/4 is the answer for that। सेकंड इवेंट हमें दिया गया इवेंट A2, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अ फीमेल। हमें ऐसा बोला गया कि कम से कम एक चाइल्ड फीमेल होना चाहिए, यानी दोनों हो सकते हैं, दोनों चाइल्ड फीमेल हो सकते हैं। तो अदर देन दिस टू, BG एंड GB के अलावा एक और ऑप्शन आएगा यहाँ पे GG, BG GB के साथ एक और ऑप्शन ऐड होगा GG, क्योंकि हमें बोला पहले केस में बोला गया था वन चाइल्ड इज अ फीमेल, दूसरे में बोला गया एटलीस्ट मींस मिनिमम वन चाइल्ड इज अ फीमेल, यानी कम से कम एक बेटी होनी चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, यानी एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अ फीमेल में तीन ऑप्शन BG, GB एंड GG, यानी उसके लिए जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स है वो तीन है, m is equal to 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर द अकरेंस ऑफ दिस इवेंट A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज m upon n is 3/4। यहां तक के जो क्वेश्चंस थे उसमें सैंपल इवेंट सैंपल स्पेस पूछा गया है, सैंपल साइज एंड इवेंट स्पेस, पर यहां से हमने प्रोबेबिलिटी का कंपटीशन स्टार्ट कर दिया है। इसी एक्सरसाइज में आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।